Good morning, everyone. Hello. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Yesterday, as I've told you, today we are going to start with the inventory recording method. First of all, let's understand what do you mean by inventory recording method. See, what happens when you are manufacturing anything, you purchase the raw material. You purchase the raw material, then you process it, and then we have the FG. But lot of procedure is involved in the issuing raw material up to the issuing raw material to process also. So today we are going to learn from how we record the raw material which is received from the supplier. This is a flow diagram. I can name it as the flow of raw material. First, we give order to supplier, order to supplier, then receipt from supplier, then definitely there will be the quality check, उसको कहते हैं QC, returning RM if not as per QC standards. हमने फाइनल अकाउंट्स में भी देखा था, if it is not as per the QC standard, we may return some defective material to the supplier also, जिसको हम कहते हैं purchase return. After QC or after quality check, such material goes to the stores. And as and when the shop floor starts running, store issues the material to the machine shop. So this is a journey of raw material from getting it into the factory up to the issuing it on the machine shop. So today we are going to learn the methods of how we can issue material. Generally, there are three methods. One is FIFO, second is LIFO, and the third is weighted average. So in the morning, we are going to start with LIFO method. In the evening lecture, today evening, we will understand the FIFO method. And tomorrow morning, tomorrow is a Saturday, no? Tomorrow morning, we will complete the last weighted average method. Guys, any question from this flow diagram? Yes, guys, any question on this? Hello? या No, एनी ma'am. पक्का समझ में आया कैसा रॉ मटेरियल कैसा फ्लो होता है? First you book the order with your supplier, then you receive the same from the supplier. You cannot accept the material as it is without the quality check. अगर quality check के हिसाब से अगर वो RM नहीं रहा, तो what you do? You just return it. You just return it to the supplier, और जो अच्छा वाला है वो आप स्टोर्स में इशू कर देंगे, राइट? बट जैसे जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, बताती हूँ मैं, जैसे जैसे प्रोडक्शन, यस चैतन्य, आई हैव रेड, जैसे जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा वैसे वैसे आपको स्टोर से मशीन शॉप तक एक मेथड, एक डिसिप्लिन्ड मेथड से मटेरियल इशू करना पड़ेगा. सो फॉर विच वी रिक्वायर the issuing methods, and the issuing methods are called as
FIFO, LIFO, and weighted average. First, I would like to request you, please take the snap of this flow diagram, and you may post it in our group as well, official and unofficial both. So are you done with the snapshot, guys? Yes, ma'am. Okay. Now, you may ask me, as Chaitanya has rightly asked, ma'am, what do you mean by FIFO? FIFO. FIFO is first in, first out, and LIFO is last in, first out. अभी ये याद कैसे रखना है या समझ के कैसे लेना है? क्लास में जो सिंसियर बच्चे रहते हैं ना, वो फीफो जैसे होते हैं. फर्स्ट आएंगे क्लास अटेंड करने के लिए, और जैसे ही क्लास खत्म हो गया, टाइम पास नहीं करेंगे, निकल जाएंगे. दोज आर लाइक फीफो. और जो सिर्फ और सिर्फ हमारा अटेंडेंस लगाने के लिए आते हैं, यार अभी तो क्लास है, चलो अटेंडेंस लगाते हैं, दोज आर लीफो. एंड में आएंगे एकदम से, और क्लास खत्म होने की बस घंटी बज गई कि भाग जाएंगे. मतलब लास्ट इन, फर्स्ट आउट, सबसे पहले वो वही बाहर निकलते. वैसे बच्चों को हम कहते हैं लीफो. अभी डिफरेंस समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय फीफो एंड लीफो? Yes, ma'am. Yes, कौन ma'am. कौन से हो, फीफो या लीफो हो? अरे मैडम, बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया आपने. ओ, आप कौन से हो भाई, फीफो या लीफो? FIFO. फीफो. हाँ, सही बात है, ऐसा तो बताना पड़ेगा. लेकिन we have third type also. The third type is weighted average method. उसमें क्या करते हैं? उसमें एक सिंपल सा रेट हम निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं. एवरेज मतलब जो बच्चे कभी कभी जल्दी आते हैं, कभी कभी लेट आते हैं, लेकिन टाइम पे ही बाहर जाते हैं, these are called weighted average method. And most of the kids belong to this criteria. See, we cannot be always 100% perfect. Otherwise, एक mental pressure बढ़ जाएगा. If you try to be perfect at 100% or at every moment ना, दिमाग पे pressure, stress बढ़ जाएगा. तो हमेशा मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि accept even your flaws, even your weaknesses, accept it and start working on it. धीरे 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 वो weaknesses आप में से निकल जाते हैं जब तक आप accept नहीं करोगे. एंड धीरे धीरे जैसे वीकनेस चले जाएंगे, वैसे यू शुड नॉट क्लेम कि अरे मेरा हर काम 100% सही होता है या हर काम 100% सही होना ही चाहिए. Yeah, I'm trying, I'm telling you something different, but this is very important. क्योंकि sometimes the the journey where we want 100% accuracy leads to the stress also. So वो हमें समझ में आना चाहिए कि कितना स्ट्रेस लेना है, कितना नहीं लेना है. कहीं जगहों पे हमें 100% एक्सलेंट रहना है. घर पे हमें पता है हम सैक कैसे सोफे पे डाल देते हैं, बूट चप्पल्स कैसे निकाल लेते हैं. ओके, हर जगह स्ट्रेस नहीं लेना है. ओके, सो आज का ज्ञान इतना ही. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्चुअली विद द प्रॉब्लम. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, क्या करें, फीफो करें या लीफो करें? मैं आपको ही पूछती हूँ. व्हाट इज योर नाउ फेवरेट? मैंने लॉजिक फीफो. ओके, चलो फीफो यस बना. मैम. आपके पास जेपीजी इमेज तो है ना? वैभव ने भेज दी ना, जो स्क्रीन पे दिख रही है आपको? No, हेलो, ma'am. जरा चेक कीजिए, या मैं चैट बॉक्स में भी डालती हूँ, नो प्रॉब्लम.
भेजे हैं हेलो जी, मिल गई या नहीं मिली? रागिनी मैम ने सेंड किए। यस गाइस, किसने सेंड किए? नो मैम, नहीं मिला। रागिनी मैम। ही हैज सेंट मी कि हो गया है। चलो मैं चेक करती हूँ, 2 मिनट। चलो अगर नहीं आई है तो मैं आपको भेजती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये किसी का आप मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हो? मैं जो अनऑफिशियल ग्रुप पे भी है, मतलब सबको मिल जाएगी तुरंत। वैसे मैं चैट बॉक्स में भी डाल रही हूँ। आप कोई भी मुझे मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में। ओके ग्रेट। व्हाट इज योर गुड नेम बेटा? दीपाली। ओके। Okay, ma'am, got it on the official group. You have received it. Okay, Yes. great. Even I am trying. चलो लेट्स स्टार्ट। लीफो करना है हमें। चलो लीफो करते हैं। नहीं, पीफो बोला ना आपने? सो पहले इसका भी एक फॉर्मेट है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। आपको तो पता है कि हाउ वी डिराइव द क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक पहले लिखते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं परचेसेस। सही बात है। परचेसेस ऐड करने के बाद हमें मिल जाता है क्वांटिटी अवेलेबल। क्वांटिटी अवेलेबल, और इस अवेलेबल क्वांटिटी से we always issue the material, and after issuing the material we come to know what is the closing balance. कल हमने मटेरियल कंजम्पशन भी बहुत सारा किया था इन कॉस्ट शीट, राइट? So here we will follow the same logic while preparing the format. So first of all, I am writing over the date on which we are supposed to issue, or we are purchasing, we are issuing the raw material. Then particular for what? For recording the transaction, whether we are purchasing the raw material or we are issuing the raw material to the machine shop, वगैरह वगैरह वगैरह. Then here I am merging the cells and I am writing it as a opening stock. इसमें आएगा quantity, rate and amount. Opening, ये तीनों opening stock का ही part है. इसमें आएगा quantity, what is the quantity at which rate and what will be the final amount. Okay. Then we have
the column of purchases. या ओपनिंग स्टॉक नहीं लेते, चलो डायरेक्टली परचेसेस ही लेते. क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट. उसके बाद आएगा इशू with same 3 columns, and finally we will write it as a balance. So this is a format which we use as a store ledger while issuing the raw material. Now let's solve the problem which is before you with the FIFO method. What I'm going to do, I am going to copy this format as it is. Over here. Okay, let's begin with the actual solving. Are you done with this format, guys? Yes, ma'am. Chalo ji. Now, what is the first transaction? There is no opening stock on 1st February 2018. I have taken this problem from actual your exam paper. सीधा एग्जाम पेपर में से ही लिया है आपके MBA के. So 1st February को the company has purchased 500 tons at 2 rupee per ton. So we need to record it 1st February 2018. And what is a transaction? It's a purchase. Opening stock कुछ भी नहीं है. अगर opening stock रहता तो हम यहाँ stock लिखते पहले and purchases second line पे लिखते. But यहाँ पे opening stock कुछ भी नहीं है, so we will not write anything. Purchase हुआ, कितना हुआ? 500 टन at 2 rupees. So the amount of purchases is 1000. दूसरा ट्रांजैक्शन डायरेक्टली 10th of February को है, राइट? बीच पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, ना परचेस का ना इशू का. सो बैलेंस, आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? जो आपने परचेस किया है एट द रेट ऑफ 2, वही आपका क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा. सो हियर वी आर डन विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन. इसलिए मैं उसको थिक बॉर्डर डाल रही हूँ. क्यों? क्योंकि ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन हो गया, इसलिए मैंने वो थिक बॉर्डर डाल दिया यहाँ पे. नाउ द सेकंड ट्रांजैक्शन इज ऑन 10th February, and what is the type of the transaction? Yeah, what is the type of the transaction? Yes guys, purchase है, issue है, क्या है? Purchase. It's again purchases. 300 tons purchase किया 10th of February पे. पहले डेट डालेंगे 10th February 2018, लिखेंगे परचेसेस. कितना किया है परचेस? 300 टन. 2 रुपए नहीं, रेट क्या है? 2.10. सो टोटल 630. यहाँ तक आपकी एंट्री हो गई बच्चों? Yes, Hello? ma'am. Yes, अभी ma'am. बैलेंस लिखते समय वी नीड टू टेक केयर, क्योंकि हमारी मेथड जो है अभी वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. मतलब जो मटेरियल पहले आया है वही पहले इशू होगा, जो सेकंड आया है वो बाद में इशू होगा. इसलिए जब स्टॉक भी लिखेंगे तो हम पहले वाला स्टॉक पहले लिखेंगे. इज दैट ओके? इज दैट क्लियर?
उसके नीचे की लाइन में, और इसको हम बाहर नंबर देंगे 1। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि पहली क्वांटिटी कौन सी इशू करनी है। तो भाई ये पहले आया था, ये पहले इशू करना है। यू में आस्क मी मैम मटेरियल तो वही है ना, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क मटेरियल में नहीं, फर्क रेट में पड़ रहा है। जो पहले मटेरियल आया था उसका रेट था 2 रुपया, जो बाद में मटेरियल आया तो उसका रेट था 1 रुपी। कल ही हमने कॉस्ट शीट भी देखा था, अगर आप कम रेट का मटेरियल पहले यूज करोगे तो आपकी कॉस्ट भी क्या होगी? कम होगी। एंड देन व्हेन यू विल स्टार्ट इशूइंग द मटेरियल एट हाई प्राइस, उसी प्रकार आपको अपना सेलिंग प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा। सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। इसके बाद हम वो दूसरा मटेरियल इसके ही नीचे लिख देंगे, क्योंकि वो है परचेसेस और वो अभी भी हमारे स्टॉक में है, और इसको हम देंगे सेकंड रैंक। सेकंड रैंक क्यों? क्योंकि वो बाद में आया है। नाउ लेट्स गिव अ थिक बॉर्डर ओवर हियर ऑल्सो। यहाँ पे पूरा पूरा हमारा 10 तारीख का एंट्री कंप्लीट हो गया। ये रैंक भी आपको देना जरूरी है। पेंसिल पेपर में आप ये पेंसिल से दे सकते हो, पूरा प्रॉब्लम होने के बाद आप ये इरेज भी कर सकते हो। आर यू डन विद द 10th February? Yes, ma'am. The next transaction is on 12th of February and there is an issue of 600 tons. अभी आप देखिए, in the first lot we are having only 500 tons but we need to issue 600 tons. तो यहाँ पे तुरंत हमें समझ में आना चाहिए कि how we are going to issue 600 tons. मेथड है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ ये 600 कैसे इशू होंगे? पहले 500 एट 2 रुपीज और दूसरे 100 एट 2.1 रुपीज। ये बात आपको समझ में आ गई? हाउ वी आर गोइंग टू इशू 600 टन? FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले वाला स्टॉक है ये पूरा हमने इशू करना है, फिर भी 100 क्वांटिटी का इशू बच जाता है जो हम इशू करेंगे ये सेकंड वाले स्टॉक से। ये कर लेगा? नो मैम। इशू कितना करना है बेटा, बताइए। हेलो, इशू कितना करना है? 600, राइट? उसको रैंक 1 दिया है, जो पहले से हमारे पास पड़ा है वो कितना है? 500. 500। तो 600 में से 500 तो पहले वाले स्टॉक में जाएंगे, उसका रेट है 2 रुपया, राइट? लेकिन इशू 600 करना है, 500 तो पहले वाला गया, बाकी का जो 100 है वो जो सेकंड माल आया था हमारे पास सेकंड टाइम, उसमें से हम 100 यूनिट्स इशू करेंगे एट द रेट ऑफ 2.1। अभी समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अभी डेट क्या थी उसकी? 12 फरवरी। तो 12 फरवरी 2018 इसमें लिखेंगे इशू। अभी इशू के कॉलम में लिखना है 500, 2000, मतलब ये 500 पूरे इशू कर दिए हमने, लेकिन इशू पूरे 600 का होगा। तो ये जो सेकंड टाइम माल आया था उसमें से 100 इशू करेंगे एट द दिस रेट 2.1। सो ये पूरे 600 का इशू हो गया, लेकिन जैसे कि हम FIFO मेथड यूज कर रहे हैं, रेट्स दो अलग अलग आएंगे, राइट? नाउ चलो अभी
स्टॉक निकालना। हमें तो पता है ये पूरा खत्म हो चुका है, राइट? तो अभी स्टॉक कितना है? 300 minus 100, 200 at the rate 2.1. So this is the स्टॉक। यहाँ तक समझ में आया आपको स्टॉक कैसे निकाला? Yes, ma'am. चलो अभी February we have purchased 400 tons at the rate of 2.2. Purchased 400 tons at the rate of 2.2. So the rate is 400 into 2.2 comes to 880. Now again we need to record the closing stock, और यहाँ पे हमें पता है ये 200 यूनिट पहले से हमारे पास है और बाद में हमने ये 400 यूनिट परचेस किए हैं। So how we will record? We will record these 200 units first. इसको रैंक देंगे हम 1, जो पहला हमें इशू करना है, और बाद में हम ये 400 लिख देंगे। See, some guys still have doubt about this thing. Guys, we need to remember that here we have to issue 600 units. First in first out method use कर रहे हैं, so पहले हम ये वाला स्टॉक इशू करेंगे। So पूरा का पूरा 500 इशू हो गया at the rate 2. 600 करना था, 500 हुआ, मतलब बाकी 100 है। ये 100 हम ये सेकंड जब परचेस किया था 300 का, उसमें से इशू करेंगे। So that is the reason the rest of the 100 units are issued from 2.1. Is it clear now, beta? Yes, ma'am. Okay. So here we are done with the 15th February transaction also. कुछ नहीं, सिंपल सा परचेस था। पहले वाले 200 एज इट इज लिख दिए जो हमें पहले इशू करना है, और देन जो सेकंड लॉट आया वो लिख दिया, उसको भी हमने मार्क किया कि दिस इज अ सेकंड लॉट, ये हम बाद में इशू करेंगे। नाउ गाइस, again on 18th of February there is an issue of 300 tons. Issue of 300 tons. अभी देखिए फर्स्ट लॉट में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमेशा हम पहले फर्स्ट लॉट इशू करेंगे। सो फर्स्ट लॉट में वी हैव ओनली 200, इशू करना है 300, तो कैसे होगा? 300 को इशू करना है, वी विल यूज फर्स्ट 200 फ्रॉम द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 2.1। सो 300 में से 200 इशू किए, सो अभी इशू करने हैं, तो ये 100 इशू करेंगे हम इस सेकंड लॉट से एट द रेट ऑफ 2.2। ये बात समझ में आ गई? 300 कैसे इशू होंगे? Yes, ma'am. फ्रॉम फर्स्ट लॉट, दिस इज फ्रॉम सेकंड लॉट, क्योंकि जब तक फर्स्ट लॉट पूरा इशू नहीं होता तब तक हम सेकंड लॉट यूज नहीं कर सकते इन फर्स्ट आउट मेथड। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. इशू का एंट्री अभी दिखा है। चलो, इशू है 18th को 200 यूनिट्स एट द रेट 2.1, 420
पूरा का पूरा इशू हुआ, देन 100 इशू होंगे at 2.2. Now let's write the closing balance. ये तो first lot पूरा का पूरा issue हो चुका है, so the closing balance will be 400 minus this 100, मतलब 300 stock आया, and finally the balance is 660 in rupees. यहाँ तक हुआ बेटा आपका? Yes, ma'am. Okay. Now on 20th February, there is a purchase of 500 tons at the rate of 2.1 rupee. चलो लिख देते हैं. परचेसेस है, कितना है? 500 टन. Rate is 2.1, so it's 1050. लेकिन अभी स्टॉक लिखना है तो ये पहला वाला स्टॉक एज इट इज हम नीचे लिख देंगे 300 at the rate of 2.2. ये पहले से स्टॉक है, सो इसको हम रैंक देंगे फर्स्ट, कि हमें याद रह सके कि पहला लॉट कौन सा था. दूसरा परचेस किया है ये 500 का at the rate of 2.1. So in the closing stock, we are having first lot of 300 tons and the second lot of 500 tons. So this is 20th February's purchase. Now we are heading towards the last entry, which is on 25th February. There is an issue of 200 tons. So 25th February. अभी आप देख सकते हो in the first lot itself we have sufficient quantity. 200 ही इशू करने हैं और फर्स्ट लॉट में हमारे 300 है, तो we will issue 200 units at the rate of 2.2. So the issue value is 440. Now how we will derive the stock? Please tell me what should I write in the stock balance? क्या लिखूं मैं अभी? 300 में से 200 इशू कर लिए, अभी क्या लिखूं मैं स्टॉक में बताइए? 100 with 2. Remaining 100. Exactly. 300 minus 200 at the rate 2.2. So the closing stock is 220 from the first lot. So immediately मैंने यहाँ पे फर्स्ट लॉट का नंबर डाल दिया और उसके साथ साथ सेकंड लॉट एज इट इज पड़ा है मेरे पास. तो इन्वेंट्री पूरी आ गई 600 यूनिट की when I have entered the second lot. So here we are done with the problem. अभी आप मुझे बताइए यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट है, इसमें कुछ डिफिकल्ट लगा आपको? एक बार कंसेप्ट समझ में आ गई कि FIFO का मतलब क्या? FIFO stands for first in first out. जो पहला स्टोर में आया है वही पहला मशीन शॉप पे जाएगा. हाँ, जो पहला स्टोर में आया है वही पहले मशीन शॉप पे जाएगा. दैट इज अबाउट द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. एंड यू नो गाइस, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है? जरा इमेज पे देखो, इमेज पे देखो कितने मार्क्स के लिए पूछा 10 गया है. marks. 10 marks. डू यू रियली बिलीव कि ये प्रॉब्लम 10 मार्क्स का है? कैन यू बिलीव इट? बट यस, इन द एग्जाम पेपर ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के लिए ही पूछते हैं.
अमेजिंग. इसलिए मैंने आपको बोला था कि फाइनल अकाउंट इज ओनली द डिफिकल्ट पार्ट विच वी हैव डन इट. Now these topics are very easy to understand, very easy to solve also. Amazing. Yes, ma'am. Right? Any questions, guys? No, ma'am. पक्का समझ में आया आपको? Yes, ma'am. Okay, that's great. ठीक है. Actually, either we can start with the LIFO method or we can solve it in the evening. So what I will do now, I will send another image to Deepali and please start solving immediately. Just give me a moment. LIFO शाम को ही लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखते. अभी फीफो की ही प्रैक्टिस करो. Just give me a moment, guys. हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे सॉल्व करने के लिए. मीनवाइल मैं आपको ये एक्सेल शीट भी भेजती हूँ, सो यू कैन हैव द फॉर्मेट ऑल्सो. आ गया आपका फॉर्मेट मिल गया. चैट बॉक्स प्लीज चेक कीजिए. जिसको मिला है वो तुरंत ग्रुप में डाल देगा. No, ma'am. नहीं मिला. नहीं मिला. मैं दीपाली को भेजती हूँ. Got it, ma'am. Got it? Yes, yes, yes. ठीक है. Can you send it on our group? It is there in the unofficial group. अच्छा, best. हाँ. Okay, sorry, ma'am. That was the other one. Solve problem. Don't worry, I'll Mhm. send. Even you can check the chat box also, it's there.
Dipali, I have sent you the format. Please forward it on the group. Even I'm Yes, ma'am. sending the second question also. Yes, ma'am, got it. I will send it. Now, please copy the file, make another sheet, calling it as a FIFO problem 2. Meanwhile, आपको problem भी मिल जाएगा. Dipali, have you received the problem? Yes, ma'am. Received. Oh, great. Guys, please start solving the problem. If anyone interested, they can share the screen also, no problem. As I have stopped sharing the screen. Or you can do it as a homework also, no problem.
Okay, guys, have you started working on it? Yes, ma'am. Okay. मैम ये इशू का रेट नीचे मतलब इट्स सेम राइट 2.70. Right, right. Okay. If the rate is not given, then you have to use the rate from Same. the balance. Okay. Of course, you have to take care of the lots. पहला वाला लॉट यूज करना है या सेकंड वाला लॉट यूज करना है, Mm-hmm. उसके लिए आपको रेट मिलेगा ही नहीं, वो बैलेंस से ही आपको देखना है. Okay. Chaitanya, please contact your any friend, because we have already posted it on the unofficial group, or you can share the number in a chat box. Ma'am, total balance is 630. Okay, yes. Is it right? 630. No, I'll send you the answer sheet also. Okay. Let others solve.
Okay, guys, I hope you are done. I'll send you the answer sheet probably by evening or tomorrow in the morning. So if you are done, you can leave the class. If not, please keep continuing until you are done. If you are already done, you can leave the class, no problem. Chaitanya, have you received the file? Chaitanya? Hello, Chaitanya? Chaitanya, have you received the file? नाही मॅम Huh? नाही मिळाले अजून. Are you're not the part of group? Hello, Chaitanya? दोन ग्रुपवरती मी आहे जॉईन. मग चेक कर जरा बाळा. एक मेंटॉर आणि एक ऑफिशियल Everyone is ग्रुप आहे. saying that they have sent it on the group. Check कर. Guys, तुम्ही असे बसून नका राहत जाऊ. आपल्याला जर नाही मिळाली तर आपल्या फ्रेंड्सना कॉल करायचा, टेक्स्ट करायचा, विचारायचा. You are doing an MBA ना, so you should know how to solve the problem. ज़्यादा spoon feeding नहीं होना चाहिए अभी. You are doing masters. Okay, guys, on this note, let's conclude for today. In the evening, we will start with the LIFO method, last in, first out. जो सबसे बाद में आएगा वही पहले इश्यू होगा, राइट? अभी थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, जो एंड में आएगा, बाद में आएगा, वो मटेरियल ही पहले इश्यू होगा. So good day, guys. Let's meet in the evening. Thanks for joining the lecture. Thank you. Bye. Thank you, ma'am.